احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم، یا وہاب یا ستار یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید، یا ودود یا ذو العرش المجید، یا فاعل لما یرید، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا على رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا۔ قدرتیں جو راہ تھے اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور خدا کی قسم وہ خدا کا ولی ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک اچھی گفتگو اور بہترین انداز میں بھرپور مندوب خراج عقیدت کو سماعت فرمائے۔ ایک مرد مومن ہے جس کا دل عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہو تو اگر پوری رات اسے ذکر مصطفیٰ سنایا جائے تو یہ دل کی غذا ہے، اور جب دل کی غذا مرد مومن کو ملتی رہے گی دل مطمئن ہوتا جائے گا، اور جب دل مطمئن ہوگا تو جسم کو بھی سرور و سکون حاصل ہوگا۔ ہم تو اس در کے بھکاری ہیں جہاں پڑھایا جاتا ہے، جہاں دیا جاتا ہے، جہاں سنوارا جاتا ہے۔ ہم شہرت کے لیے نہیں، ہم تو بزرگوں کے در کے خادم ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اے فت ابو الفیض، ہم تو آپ کے در کے غلام ہیں آقا، خطابت کے لیے نہیں، ہم تو آپ کی غلامی میں اپنا نام نامی اس میں گرامی لکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ کہ اگر چند لمحہ ارے ابو الفیاض کی بارگاہ میں نکل گیا تو مالک ابو الفیاض نے اسے قبول کر لیا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے اور تمام سامعین کا بیڑا پار ہے۔ پیموں سے منائی جاتی ہے، تینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ قرآن جو ہمارے لیے لائے عمل ہے، قرآن جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے، قرآن جو ہمارے لیے بہترین منشور ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے محبوب آپ کے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے محبوب کے زمانے کی، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ محمد رسول اللہ پہ بند ہو گیا۔ اے آقا، ارے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر ولایت کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے، اور ولایت کے در سے ارے باب نبوت کی روشنی زمانے کو ملتی رہے گی، اور آپ تو قیامت کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے آپ
मालिक जमाना नबी का है और गुलाम नबी का है, और जब रिश्ता दोनों का मजबूत हो जाए तो फैजाने अबुल फैयाज की मौसलाधार बारिश हो, और न दुनिया भी बिगाड़ सके और आखिरत में भी उसका बोलबाला रहे। तो वल अस्र कुरान ने कहा कि वल अस्र कसम है महबूब आज के जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। इंसान की तारीफ अल्लाह ने खसारे से किया है, इंसान की तारीफ अल्लाह ने नुकसान और घाटे से किया है। कुछ इंसान वो है जो दुनिया की चमक और दमक में अपने आप को मसरूफ रख करके और वो अपनी कामयाबी ढूंढ रहे हैं। अरे कुरान ने मुतनब्बा कर दिया, ये दुनिया की चमक चंद रोजा है। अरे हमने फिरौन को दुनिया की रहनुमाई दी है, हमने कारून को दुनिया का खजाना दिया है, हमने फिरौन को दुनिया की हुकूमत दी है, हमने शद्दाद को अरे दुनिया में जन्नत बनाने की कुव्वत दी है। मगर मैं खालिक कुल हूँ, मैं मालिक कुल हूँ। अरे मेरे कब्जे कुदरत में सब कुछ है। अरे जन्नत तो सरदार ने बनाई, मगर जन्नत न देख सका, कदम रखते ही उसकी रूह को परवाज कर लिया गया। अल्लाह ने दौलत दी मगर कारून के खजाने को अल्लाह ने अपने गिरफ्त में ले लिया। फिरौन की ताकत का खात्मा हो गया, नमरूद की कुव्वत का खात्मा हो गया, नमरूद की हुकूमत का खात्मा कर दिया। और कुरान ने कहा इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। अरे अगर तुम कारून बन के आओगे खसारे में रहोगे, फिरौन बन के आओगे खसारे में रहोगे, नमरूद बन के आओगे खसारे में रहोगे, शद्दाद बन के आओगे खसारे में रहोगे। अरे खसारे में है, मगर कुर्बान जाओ। आगे कुरान ने वाज़ेह कर दिया इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान ले आए वो खसारे में नहीं है। अरे जो ईमान ले आए वो नुकसान में नहीं है, जो ईमान ले आए वो घाटे में नहीं है। ईमान लाने पर खसारा गायब कर दिया गया, नुकसान हटा दिया गया, घाटा मिटा दिया गया। इसलिए कि अल्लाह ही नुकसान देता है, अल्लाह ही खसारे में डालता है। और जब रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान ले आए वहाँ से खसारा निकाल दिया गया, उन्हें वहाँ से अरे खसारा हटा दिया गया। अल्लाह को यानी वो खसारे में नहीं है, जो ईमान ले आया वो नुकसान में नहीं है। ए लोगों, जब ईमान ले आए तो खसारे में नहीं है, नुकसान में नहीं है। अब जरा सोचो कि अबुल फैयाज की बात कितनी बुलंदो वाला है। अरे जिसको रब ने अपना वली बनाया, जिसको रब ने अपना दोस्त बनाया, और जिसको अल्लाह दोस्त बना ले, जिसको अल्लाह पसंद फरमा ले, जिसको अल्लाह अपने करीब कर ले, अरे अब उसके ईमान में कोई शक शुबा नहीं है। और जब उसके ईमान में शक शुबा नहीं है तो जो उनके दामने करम से वाबस्ता हो जाए, अरे अल्लाह उनके सदक़े में दामने करम से वाबस्ता होने वाले के अंदर भी ईमान में कभी अता फरमाता है। आज पानिए महफिल जिन्होंने इसका आगाज किया, जिन्होंने अबुल फैयाज के इस अजीम शान की याद में इस अजीम शान जलसे का इनेकाद किया, कुल भी करवाया, चादरें भी चढ़ाई, यादों मोहब्बत में अपने आप को सरशार रखा। अरे मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है कि जब हजरत अबुल फैयाज कमरुल हक अलैहिर्रहमा के उसकी बात होती थी, पीरे कामिल ने कह दिया, रोशन ज़मीन ने कह दिया, साहिब सज्जादा ने कह दिया, तो हाल ये है कि अब शिवलियों मारूफ की खुशी का ठिकाना नहीं। हमें सनद मिल गई। अरे जब पीरे कामिल ने कह दिया ए मारूफ और शिवली, अरे तुम अबुल फैयाज को याद करो, जमाना तुझको याद करेगा। तुम अबुल फैयाज को याद करो। अरे दुनिया अबुल फैयाज को फरामोश करना चाहता है, हम तो दिल देखना चाहते हैं कि अबुल फैयाज की मोहब्बत लेकर कौन आया है, अबुल फैयाज की अकीदत में कौन आया है, जो अबुल फैयाज की अकीदत और मोहब्बत में आया है। अरे फैज़ान हुसैन उसके साथ है, करबला वाले आकाओं के फयूज़ बरकत उसके साथ है। तो शिवलियों मारूफ एक मर्दानी कैफियत होती थी कि आज तो मेरे पीने का भी था उससे, और उनसे अपनी
वो अब्बते निछावर कर देते थे। ये अबुल फैयाज की करामत है, ये अबुल फैयाज की जिंदा करामत है। कहा तुमने मेरा चर्चा किया, तुमने मेरी याद बनाई, तुमने मुझे याद किया है। अरे जा हे अबुल फैयाज, अरे तूने मुझे याद किया है तो तेरी नेक और साले औलादे तुझे याद करेंगे। अब यहाँ फैजान, अरे फैजान औलिया होगा, यहाँ बेड़ा शिवलियों मारूफ का भी पार होगा और अबुल फैयाज की मजलिस पाक में जो आएगा उन सब का बेड़ा पार कर दिया जाएगा। लेकिन जो ईमान ले आए, वक्त बहुत कम है हजरात गिरामी, इसलिए मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं, मैं तो सिर्फ मैंने कहा कि उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए, गुलामी का नजराना पेश करने के लिए कि कल जब मैदान महशर में जहाँ शिवलियों मारूफ और दीगर खानदान का शजरा पेश किया जाएगा, ये वो लोग हैं जो तन से धन से मन से अबुल फैयाज को याद किया है, तो उन गुलामों की लिस्ट में हम सब शामिल कर दिए जाएंगे कि अबुल फैयाज का चर्चा अरे अल्लामा ने भी किया है, शायर इस्लाम ने भी किया है, गुलामों ने भी किया है। अल्लाह अकबर। ए अबुल फैयाज, आज रब का इनाम है, आज पहला ताजा अगर तेरे सामने करम में आता जाएगा उसके लिए जन्नत की बशारत। इसलिए कि दोस्त रब का, दोस्त अल्लाह का है और अल्लाह का दोस्त मामूली नहीं होगा। एक दुनियादार का दोस्त हो जाए तो बैंक मुले नहीं समाता है, और जहाँ अल्लाह का दोस्त हो जाए क्या कहने। तो हज़रात गिरामी कुरान ने कहा आगे इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान ले आए, जो अमल सालेह किया, ये अमल सालेह का मामला अगर नेक और सालेह औलाद वालिदैन छोड़ गए हैं तो यही तो सदका जारिया है कि जब तक उनके लिए कुरान खानी कराते रहेंगे, इसाले सवाब कराते रहेंगे, अरे इनकी रूह खुश होगी। और आज इनकी रूह तो यहाँ मौजूद है, हम ज़ाहिरी आंखों से अपने पीरे कामिल का उर्स मनाते थे, तो अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे आज हमारी रूह चल करके और अबुल फैयाज के फयूज़ और बरक़ात से मालामाल होती है। तो रूह शिवलियों मारूफ आज यहाँ तशरीफ फरमा है कि नेक और साले औलाद छोड़ जाए, ये एक अजीम सदक़े जारिया है। अरे खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने बाप नेक और साले औलाद छोड़ जाए कि जिस काम को बाप पसंद करे, अरे बेटा भी उसे पसंद करे। ए मेरे बाप, अगर आपने अबुल फैयाज को पसंद किया है, दीवान जी को पसंद किया है, दीवान साहब को पसंद किया है, आपने हजरत मौलाना गुलाम यासिर तुस्सी नवाज़ी को पसंद किया है, आपने हजरत मुफ्ती उबैदुर रहमान अलैहि मुफ्ती उबैदुर रहमान क़िबला साहिब सज्जादा को पसंद किया है, तो रब का इरशाद है कि जिसने मेरे महबूब को पसंद कर लिया, मेरे महबूब के महबूबीन को पसंद कर लिया, तो जिसको महबूबीन ने पसंद कर लिया उसको रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया, और जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया उसको अल्लाह ने पसंद कर लिया। तो अमले सालेह करो, ये अमले सालेह है। आज अमले सालेह की जरूरत है। अगर बेटा नेक हो जाए, बेटा सालेह हो जाए, ए लोगों, अरे दुनिया सब कमाते हैं, ये दुनिया फानी है, मगर जितने आखिरत बना ली वही आखिरत का सौदा तो बाकी रहने वाला है। अरे कल जवान थे, आज बूढ़े हो गए, कल परसों मर जाएंगे, मगर ये लोगों आखिरत का सौदा ये है कि आखिरत में हमेशा जवान रहेगा, आखिरत में हमेशा इनाम पाएगा, आखिरत में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो आज इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, अमले सालेह किया। अमले सालेह यही है कि नेक बेटे ने अपने माँ बाप के बताई हुई तालीमात को अमल किया है। कौन नहीं जानता, इसी माहपुर की सरजमीन से उठने वाला दौलत तो कमाया, मगर उस दौलत को हजरत सरकार आती के कदमों पर डाल दिया। कहा आका, अरे हम दुनिया नहीं, हम आखिरत कमाना चाहते हैं। अरे दुनिया तो सब कमाते हैं, हम आखिरत कमाना चाहते हैं। तो सरकार आती ने कबूल फरमाया और फरमाया जा, अरे तुम मेरे निस्बत से तंजीम बना ले, तंजीम बना ले। और जब तू
आशी के नाम से तंजीम बनाएगा और उस तंजीम से जब काम करेगा तो तेरी दौलत घटेगी नहीं, अरे तेरी दौलत में भी इजाफा होगा, तेरी बात यानी तेरा दिल भी रोशन होगा। और जो यहाँ से पाकीज़ा तालीमात निकलेंगी, जो किताबें छपेंगी और उस किताबों से दिल रोशन होगा, इस दिल की रोशनी का सवाब अल्लाह अकबर। जिन जिन लोगों ने किया है नाम नहीं लूंगा, मगर जो लोग लगे हुए हैं, एक आयत कबूल कर ली गई, एक जुमला पसंद कर लिया गया और रब की बारगाह में पसंद हो गया। हे आसिफ तंजीम बनाने वाले, अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाएगा। हज़रत गिरामी, ये आपके महताब की शख्सियत है जिनको अल्लाह के वलियों ने पसंद फरमा लिया है और आसिफ के मिशन में लगे हुए हैं। किताबें वो तेरी ना किताबें, अरे जिसमें हमारी और आपकी न तो इल्म है न तो बीनाई है कि अब उसे देख और समझ सके। हे लोगों, सरकार आसिफ उस बात का नाम है कि अगर ट्रेन जौनपुर से गुजरती है तो अपने वक्त का शहंशाह कलम, जिसे दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी पहचानती है, बाप के साथ जा रहे हैं, बाप और बेटे हैं। अल्लाह अकबर, जो ट्रेन आ रही है कहाँ से आ रही है? जौनपुर से आ रही है। बाप आगे बढ़े और डिब्बों को बोसा दे रहे हैं। बेटे ने पूछा, अल्लामा अरशदुल कादरी ने पूछा, अब्बा क्या बात है? कहा बेटा, अरे मुझको ट्रेन से नहीं, अरे दियारे अभी डिब्बे को छोड़ने को जी नहीं चाहता है। अरे जब डिब्बे छोड़ने की दिल नहीं चाहता तो जो सरापा डिब्बे से वाबस्ता हो जाए दिल कैसे छोड़ेगा? केबुल फैयाज हम तुम्हें छोड़ दे तो हज़रात गिरामी, आज के हालात इस बात के आज के हालात आपको इस बात के लिए बेदार कर रहे हैं। लोगों, साले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और परहेजगारी अरे दुनिया की दरगाह में नहीं मिलेगा। अरे जब परहेजगारी चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो तो अल्लाह के वलियों की जूतियां हिंद के राजा का तकवा चमक रहा है। हजरत महबूबे इलाही की विलायत दमक रही है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर की अजमत का चर्चा हो रहा है। हजरत बख्तियार काकी अल्लाह अकबर, जिन्हें हिंद के राजा ने सीने से लगाया, सीना इतना कुशादा कर दिया, इतना कुशादा कर दिया कि वक्त विसाल इरशाद फरमाया कि मेरा विसाल हो जाए तो वसीयत बंद लिफाफे में वसीयत करके रख दिया और कहा जब मेरा वसाल हो जाए तब इस लिफाफे को खोला जाए। अल्लाहु अकबर। और जब चंद माह के बाद पीरे कामिल हजरत बख्तियार काकी का अल्लाहु अकबर वसाल होता है तो अब खोला गया, लिफाफा खोला गया, वसीयत नामा देखा जाए तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसकी पंज वक्ता नमाज जमात से अलग न हुई, यानी पंज वक्ता नमाज की जमात न छोड़ी हो, तकबीरे ऊला के साथ पंज वक्ता नमाज पढ़ी हो। और दूसरा कहा जिसकी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं। और तीसरा कहा कि असर की नमाज से पहले जो सुन्नते गैर मुअक्किदा है वो सुन्नते गैर मुअक्किदा भी कज़ा नहीं। आज तो सुन्नते गैर मुअक्किदा पे तलाश किया जाए, शायद बात को ऐसा मिल जाए जो सुन्नते गैर मुअक्किदा को पाबंदी से, अरे कभी कभी पढ़ ले पाबंदी की। अब तो सब लोग एक दो नहीं बल्कि उस जमाने में जो तरक्की याफ्ता युग नहीं था, 80,000 से ज़्यादा मुहद्दिसीन उलमाए हक हाजिर थे। लिफाफा पढ़ा तो वही खामोश, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वक्त जनाजा करीब आ गया, अब लोग महवे हैरत हैं कि आखिर पीरे कामिल की नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, इंतजार में है। तो एक शख्स हाजिर हुआ और जाने के बाद आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत की, पेशानी को बोसा दिया, कहा हुजूर ये मामला तो आप जानते थे, आपका रब जानता था, मैं जानता, तीन के अलावा को नहीं जानता था। अरे आपने आज मेरे राज को बेपर्दा कर दिया। आपने मेरे राज को, ए मेरे पीरे कामिल, आपने मेरे राज को
पोशीदा कर दिया। इन लोगों को कोई और नहीं था, दिल्ली का शहंशाह था, जिसे दुनिया हजरत शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है, जो तकवा में बेमिसाल है, परहेजगारी में बेमिसाल है, इबादत में बेमिसाल है और बादशाहत में भी बेमिसाल है। बादशाहत में रह करके और फकीरी का इतना पैकर का अमल का पैकर बन गया कि अल्लाह अकबर, बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी कदम उठ गए, आगे बढ़ गए और फिर जाके नमाज जनाजा पढ़ाई। तो हजरात गिरामी, ये अल्लाह वालों की नजर है, जिस पे डाल दे अरे उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है। तो हम भी अल्लाह वालों की बारगाह में अरे फयूज़ व बरक़ात लेने के लिए हाजिर है। तो कुरान ने कहा इल्ला लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान ले आए, वो अमल सालिहात, अमल सालेह किया। आज जरूरत ये है कि अपने घरों में अच्छी तालीम दी जाए, बच्चियों को अच्छी तालीम दी जाए, अपने बहुओं को अच्छी तालीम दी जाए, ताकि घर जन्नत का नमूना बना रहे। आज घरों में इंतजार है, सास और बहू में इख्तिलाफ, ननद भौजाई में इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ की बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि दिल अरे मोहब्बत रसूल से खाली है। अगर दिल मोहब्बत रसूल से भरा होता तो सास अपनी बहू को अपनी बिटिया बना लेती, तो फिर घर जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत की प्यारी बन जाती। अमल सालिहात यही तो है, वह अमल सालिहात, अमल सालेह करो, व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, हक की तबलीग करो, हक का प्रचार प्रसार करो, और मुसीबत आए तो सब्र करो। यही मिजाज दिया, हक से पीछे नहीं हटना है। अरे गाँव वाले क्या कह रहे हैं? अरे मुझको तो वही कहना है जो मेरे पीरे कामिल ने कहा है। हम कहते रहेंगे और तुम करते करो ना करो, तुम्हें जो कहना है कहो, हम कहेंगे। और अगर उनकी तरफ से तंग आए तो हम सब्र करेंगे। तो अल्लाह आपके दायरों बातिल को भी पार कर देगा। और कल आपके दिल सब्र शुक्र की बुनियाद पे सबके दिलों को अल्लाह हिदायत से मुज़य्यन फरमाएगा। आज हम इसे अल्लाह की मुक़द्दस वली के बारगाह में हाजिर है, जिस वली ने दुनिया के सामने अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का दीप जलाया है। आज जरूरत है कि अच्छे अखलाक को अपनाएं, अच्छे किरदार को अपनाएं, और अच्छा अखलाक होगा, अच्छा किरदार होगा, दुनिया कहेगी इंडिया ये किसका बेटा है? यही कहा जाएगा अरे यही तो अबुल फैयाज के गुलाम का बेटा है। कहा जब बेटा इतना अच्छा है, इसका बाप कितना अच्छा होगा, और जब बाप इतना अच्छा है तो बाल दुनिया कहेगी बाप इसलिए अच्छा है कि अच्छों की सोहबत में रहा। सोहबते नेक वही तो है जो नेक सोहबत से नेक बन जाया करता है। तो हज़रात गिरामी, आज के बिगड़े हुए माशरे में हमें खायक होने की जरूरत नहीं है। कुरान ज़बान में दहर कह रहा है वला तैनू वला तातनू वअंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती ना करो, गमगीन ना हो, उदास ना हो, फिक्रमंद ना हो, चिंतित ना हो। कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, रिफात चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो, बर्तरी चाहते हो, इन तुम मोमिन पक्के मोमिन हो जाओ, कामयाबी तुम्हारा कदम चुनो। इसी को तो इल्ला लज़ीना आमनू कुरान ने कहा कि तुम ईमान के दामने कर्म से वाबस्ता हो जाओ, अमल सालेह करो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत की वो जिंदगी जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वो भी समझ जाएंगे। अल्लाह हमारी इस मुख्तसर से गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हम सबको पिराने रशीदी के सुन्नत व बरकत से मालामाल फरमाए और उनकी बारगाह में जो हम सब ने गुलामी का नजराना पेश किया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाते हुए पिराने रशीदी के सुन्नत व बरकत से मालामाल फरमाते हुए इनकी नेक तालीमात पे हम सबको चलने और ईमानदारी के साथ, जानकारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।